بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں، پنجاب الیکشن نظرثانی کیس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کی مزید مہلت کی استدعا پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی دائرے کے گرد گھومنا بند کریں۔ آئین کسی کی جاگیر نہیں ہے، کوئی بھی آئین سے انحراف یا تجاوز نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آئین نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرخوانی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے تیاری کے لیے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب ذہن میں رکھیں کہ یہ نظرثانی کیس ہے، آپ فیصلے میں غلطی پڑھ کر بتائیں کہاں ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے فیصلے میں غلطی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات مؤخر کرنے کا اختیار نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، عدالت الیکشن کمیشن کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں کرانے کی حد پر کچھ وجوہات میں چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے خود کو یہ چھوٹ خود کیسے دی کہ وہ انتخابات میں تاریخ کر سکیں۔ کمیشن 5 سال تک یقینی نہیں بناتا کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے تو کیا انتخابات نہیں ہوں گے؟ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے دہشت گردی کے مقدمات میں ضمانتیں منسوخ کرنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے 7 مقدمات میں ضمانت منسوخی کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواستوں میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج، تھانہ گلبرگ اور تھانہ سربروج پولیس کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عباد الحق، بتائیے اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں، درخواست میں کیا موقف ہے؟ جی، چیئرمین تحریک انصاف نے اپنے وکیل کے ذریعے 7 مختلف درخواستیں دائر کی ہیں، جس میں انسداد دہشت گردی کے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت ان کی عدم پیشی پر ان کی ضمانتیں خارج کر دی گئی تھی۔ درخواست میں بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے سربراہ کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی اور اسی وجہ سے انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں ہونے کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکے اور اسی بنیاد پر ان کے خلاف 7 جو مقدمات میں ضمانت دائر کی گئی تھی، عدالت نے ان کی عدم پیشی کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ درخواست میں اصلاح کی گئی ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اس کو منسوخ کر کے کالعدم قرار دیا جائے۔ بہت شکریہ عباد الحق، آپ اس بارے میں بتا رہے تھے۔ رہنما پی ٹی آئی اور ماہر قانون سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کر دیا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر کروانا ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو صاف شفاف انتخابات کے لیے تمام انتظامات 90 دن کے اندر ہی کرنا ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہوا تو سنگین اس کے توہین عدالت اس کو تصور کیا جائے گا۔ مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کرنے کے بعد ایک پرنسپل فیصلہ ہو گیا ہے اور ان پرنسپل فیصلہ یہ ہے کہ آئین میں 90 دن میں الیکشن کرانے ہی کرانے ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے ہوں۔ تو یہ جو ججمنٹ ہے یہ اب نیشنل اسمبلی کے جو اور باقی جو پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہیں جو آنے جا رہے ہیں ان کے اوپر پوری طرح لاگو ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ 90 دن سے آگے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے اب امید ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ مشاورت کر رہا ہے مختلف پارٹی سے الیکشنز کے بارے میں، اب وہ الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کے اناؤنس کر دے گا۔ اس ججمنٹ کے بعد اب مزید ڈیلے کا کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر ڈیلے ہوا تو سرٹنلی پھر یہ کنٹیمپٹ ہوگی اور بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی عدالت کی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان ہے۔ 100 انڈیکس میں 800 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ مارکیٹ نے 46,000 کی نفسیاتی حد
खो दी है और इंडेक्स 45,432 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद ₹1.55 इजाफा हुआ। 305 रुपये 10 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 322 का हो गया है। इसी बारे में क्या डिटेल्स हैं ये जानेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइए क्या रहा मार्केट का मजमूई अहवाल? जी शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर है और कोई सूरत हाल नजर आ नहीं रही, क्योंकि जो आउटफ्लोज है वो बढ़ चुके हैं और इनफ्लोज ना होने के बराबर है। बिजली महंगी है, बाकी चीजें महंगी है, जिससे इंडस्ट्री भी जो है वो रुकती हुई नजर आ रही है। और डॉलर हम देख रहे हैं कि बेकाबू है, स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार है। ओपन मार्केट में 3 रुपए बढ़ा है डॉलर और 318 रुपए से बढ़कर 322 रुपए पर पहुंच चुका है। इसी तरह ओपन मार्केट में 1 रुपए और 55 पैसे इजाफे से इस वक्त डॉलर जो है 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। दूसरी तरफ अगर हम देखें स्टॉक मार्केट को, तो स्टॉक मार्केट भी मुसलसल गिरावट का शिकार है। 807 पॉइंट की कमी है और आज जो 46,000 की नफसियाती हद थी वो भी गिर चुकी है और इस वक्त इंडेक्स 45,436 पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर 1.75% की गिरावट है। और अगर सेक्टर वाइज बात मजमूई तौर पर मार्केट गिरावट का शिकार है। राशिद, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों की शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद। इस्लामाबाद, पेशावर, ओकाड़ा, बहावलनगर, चनियोट, रहीम यार खान, मीरपुर खास में बाजार और मार्केट्स बंद हैं। रावलपिंडी और मुल्तान में जुज़वी हड़ताल है, चंद मार्केट्स बंद हैं और दीगर शहरों में भी शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन की जानिब से बिजली के बिल जला दिए गए और कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, कराची में अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर में हरबंसपुरा पुल पर मुजाहिरीन ने सड़क को बंद कर दिया। गोजर खान में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे पर ताजिर बिरादरी की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में शटर डाउन हड़ताल, मार्केटें बंद, बेशतर तिजारती मराकज बंद। कराची की ताजिर एक्शन कमेटी का 1 सितंबर जबकि जमात इस्लामी का 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद, पेशावर, ओकाड़ा, बहावलनगर, चनियोट, विहाड़ी में शटर डाउन हड़ताल। शहरियों और ताजिरों का कहना है कि बिजली होती नहीं और कारोबार है नहीं, भारी बिल कहां से अदा करें, बिलों में जालिमाना टैक्स वापस लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी बतौर एहतजाज अदालतों का बायकॉट किया। आए दिन पेट्रोल कीमतों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, बिजली के बिल भरने से कासर लोग अपने घरों को सामान बेच कर बिल अदा कर रहे हैं। हम हुकूमत से वक्त से मुतालबा करते हैं कि गरीब का चूल्हा पहले ही बुझ चुका है, अब वो इन बिलों को अदा करने की ताकत नहीं रखता। इसको खुदारा को रिलीफ दे ताकि ये जिंदा रह सके। मीरपुर खास में अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल, कारोबारी मराकज समेत पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए। मुल्क भर में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज, शहर शहर मुजाहिरे और रैलियां। मुजाहिरीन का वापडा के दफातर का घेराव का सिलसिला जारी है। बिजली के भारी बिलों ने शहरियों की नींदें उड़ा दी हैं। बरकी झटकों का मामला आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच की जेर सदारत ताजरों का इजलास हुआ। ताजरों ने रिलीफ न मिलने तक शटर डाउन हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इसी बारे में बात करते हैं, मोहम्मद उस्मान बट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रहे हैं, कोई मुज़ाकरात का प्लान बनाया गया है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जहाँ आम शहरी सरापा एहतजाज है, वहीं हमारी जो ताजर बरादरी है जो किसी भी मुल्क की मैशत की रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है, वो भी यहाँ पर सरापा एहतजाज है। इस वक्त हमारे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान भर के जितने भी ताजर हैं उनकी यूनियन के सदर हैं। आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी मोहतरम, ये बताइए कि क्या वजह है कि आपको रिलीफ क्यों नहीं मिला और क्यों आप लोग सरापा एहतजाज और ये एहतजाज कब तक जारी रखेंगे? देखिए, हमने एहतजाज का ऐलान किया था मंगल के दिन। पूरे मुल्क में हर मार्केट में एहतजाज हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हुआ है, उस पर हुकूमत ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमने ये हड़ताल की कॉल दे दी। उसके बाद इस पर भी शायद मेरा ख्याल है उनका कोई ध्यान नहीं है। उनको पता नहीं किस मकसद के लिए लाया गया है। ना तो इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं मुल्क में। जब तक आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे सारे बहरान जन्म ले लेंगे और इस वक्त हालत बहुत बुरी हो गई है। जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि हमें मजबूरन जो है ये शटर डाउन हड़ताल करना पड़ी है। अगर हुकूमत अभी भी होश के नाखून ले तो ये अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे और अगर हुकूमत की जानिब से रिलीफ नहीं दिया जाता तो इसके बाद वो अपने अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। जी शुक्रिया उस्मान, हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, महंगाई और बिजली के बिल्स में इजाफे पर इस्लामाबाद में ताजिरों ने हड़ताल कर रखी है और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा GNN असगर हयात। इस वक्त आप पारा मार्केट में मौजूद हैं, वहां की क्या सूरत हाल है? असगर, बताइएगा
एहतजाज का सिलसिला यहां पर जारी है। ताजिर क्या कहते हैं? आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई है, शटर डाउन हड़ताल किया गया है। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मार्केटों का हमने विजिट किया, मलोटी मार्केट, G7, G6। इस वक्त मैं अपारा मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर शटर डाउन करके ताजर एहतजाज कर रहे हैं और ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इजाफी बिल जो बिजली के भेजे गए हैं और उस पर कोई रिलीफ जो है हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। ताजरों की जानिब से हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इज़हार किया गया है और ये कहा गया है कि जब तक हुकूमत जो है बिजली के बिलों में इजाफा वापस नहीं लेती, एहतजाज जारी रहेगा। ताजरों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जिस रिलीफ की बात की जा रही है कि बिजली के बिल एक साथ में जो है वो वसूल किए जाएंगे, इस रिलीफ को वो मुस्तरद करते हैं। और ताजिर जो यहाँ पर इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं और दुकानें बंद करके शटर डाउन करके वो यहाँ पर मौजूद भी है। और उनका ये कहना है कि आया दुकानें बंद करने से उनका नुकसान भी हो रहा है, लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ वो सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत की जानिब से कोई भी उनको रिलीफ देने के हवाले से इक़दाम जो है वो सामने नजर नहीं आ रहे। और जो बात कही जा रही है कि IMF से पूछकर जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, इस बात को भी वो मुस्तरद करते हैं। और जो बिजली के इजाफी बिल हैं, जो भारी टैक्स लगाए गए हैं, बहुत शुक्रिया असगर हयात, तमाम तर सिचुएशन से आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया है। ज़राए के मुताबिक IMF से बिलों में रिलीफ पर आज जवाब मिलने का इम्कान है। बिजली बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है और IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए ये मुआहिदा हो सकता है। IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ मिलेगा और अगस्त और सितंबर के बिल्स को एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। ज़राए के मुताबिक बिजली बिल्स में टैक्सेस में कमी के लिए IMF रिलीफ नहीं देगा। IMF हुकाम से निगरान वज़ीर खजाना ने बिजली के बिल्स में रिलीफ की दरख्वास्त की थी। वेलकम बैक। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, कई शहरों में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गई है। एक हफ्ते के दौरान चीनी 30 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद महंगी हो गई। 3 माह के दौरान कीमत में 80 से 90 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। कराची में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त, जबकि लाहौर में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। पेशावर, मुल्तान, रावलपिंडी और कोयटा में भी चीनी 180 रुपये फ़ी किलो में मिल रही है। शुगर माफिया बेलगाम, शहर कायद में चीनी की कीमत रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। होलसेल मार्केट में चीनी 8 से 9 रुपए महंगी होकर 170 से 171 रुपए पर फरोख्त की जा रही है। रवा हफ्ते कीमत में 14 रुपए का इजाफा हो चुका है। इस तरह परचून सतह पर चीनी की कीमत में यकमुश्त 13 से 15 रुपए के बड़े इजाफे के बाद चीनी 185 रुपए फ़ी किलो हो गई है। होलसेलर ने भी चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। कल तक रेट थे 165 रुपए और आज 170 रुपए से ऊपर की परवाज है इसकी, मतलब एक दिन में 5 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है चीनी में। जबकि अभी मजीद पेशन को यही है कि चीनी 175 रुपए और 180 रुपए की पेशन पे पहुंच जाएगी होलसेल के अंदर। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के रिट बराए नाम भी नहीं रही, सारा कसूर अवाम का है। महंगी चीनी क्यों खरीद रहे हैं? आटा बढ़ गया, चीनी बढ़ गया, घी बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा है। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद ना तो शुगर मिल के खिलाफ कार्रवाई हुई और ना ही जखीरा अंदोजों को लगाम डाली गई। कैमरामैन फैसल खान के साथ सोनिया खनजादा, GNN कराची। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अदालत ने पेश करने का हुक्म दे दिया है और हिदायत की है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब को 2 बजे अदालत में पेश किया जाए। इबादुल हक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें उनकी नैब की जानिब से गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान नैब के वकील ने दरख्वास्त का जवाब दाखिल कराने की मोहलत देने की इस्तदा की। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए, चलें ठीक है, परवेज इलाही को फिर रिहा करने का हुक्म दे देते हैं। अदालत ने हदायत की कि परवेज इलाही को अदालत में पेश करें। अदालत ने बावर कराया कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, तब्दील होते रहते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद दरख्वास्त गुजार की किस तरह गिरफ्तारी हुई। इस पर नैब के डायरेक्टर ने बताया कि जब अदालत ने हुक्म जारी किया उस वक्त दरख्वास्त में नैब फरीक नहीं था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं, बता दें सेशन जज लाहौर को कहकर इंक्वायरी करा लेते हैं। अदालत ने बावर कराया कि अगर इंक्वायरी होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही की गिरफ्तारी क्यों हुई। पंजाब हुकूमत के वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस्तदा की कि उन्हें मौक़िफ़ बयान करने के लिए मोहलत दी जाए, लेकिन अदालत ने इस बुनियाद पर इस्तदा मुस्तरद कर दी कि वो इसमें फरीक ही नहीं।
साइफर केस सटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए और पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। नोटिस जारी करके उस पर भी जवाब तलब कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और रिमांड का रिकॉर्ड देने की इस्तदा की गई है। ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, आईजी और एफआईए को हुक्म जारी कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला से पीर तक सूबों से मुकदमात की तफसील तलब की गई। उधर श्री मज़ारी की ईसीएल से नाम निकलवाने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत से कबल आईजी 25,000 रुपये शेरी मज़ारी को दें और 2 अगस्त को एक हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। आज तक जवाब जमा नहीं कराया गया। वेलकम बैक। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। जैन कुरैशी दुबई जा रहे थे। जराए के मुताबिक एफआईए इमिग्रेशन ने जैन कुरैशी का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल होने के बिना पर उनको रोका है। इसी बारे में बात करने के लिए वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ बताइए, वासिफ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। खबर आपको दे रहे हैं कि जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया है और क्या वजूहात हैं, किस बिना पर उन्हें रोका गया है, इस हवाले से डिटेल्स मिलेंगे। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है और एफआईए की जानिब से उन्हें रोका गया है। जैन कुरैशी बैरून मुल्क नहीं जा सकते। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को बैरून मुल्क जाने से रोका है। वासिफ महमूद से बात करते हैं। वासिफ बताइए, किन वजूहात के बिना पर रोका गया, ईसीएल में नाम क्यों है? देखिए, शाह कुरैशी वाइस चेयरमैन पीटीआई, उनके बेटे जैन कुरैशी को लाहौर एयरपोर्ट पर एफआईए ने रोक दिया है और जराए का ये कहना है कि जैन कुरैशी आज निजी एयरलाइन की परवाज से लाहौर से दुबई रवाना हो रहे थे। जैसे ही वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने अपनी इमिग्रेशन करवाई तो वहां पर एफआईए के अमले ने उनको रोक लिया। उनका कहा बताया ये गया है कि उनका नाम ईसीएल के ऊपर डाल दिया गया है और वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। उनको तहम एफआईए ने हिरासत में नहीं लिया, लेकिन उनको लाहौर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है और उनका जो पासपोर्ट है वो भी एफआईए ने अपने पास रख लिया है। उनको पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया गया। वासिफ, ईसीएल में नाम क्यों शामिल किया गया है, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमाओं के नाम ईसीएल में डाल दिए गए थे या स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए थे। चूंकि जैन कुरैशी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं और इंतहाई सरकर्दा रहनुमा भी तस्वर किए जाते हैं, तो तहरीक इंसाफ के मुताबिक रहनुमाओं के नाम ईसीएल में या स्टॉप लिस्ट में डाले गए थे। फरूख हबीब भी इससे पहले लाहौर एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे तो तब उनको भी वहां पर रोक दिया गया था। उनको बताया गया था उनका नाम स्टॉप लिस्ट में है और उनको हिरासत में लेने की कोशिश की गई थी। तहम फरूख हबीब तो वहां से एयरपोर्ट से निकल गए क्योंकि उनका नाम ईसीएल में नहीं था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैन कुरैशी का नाम ईसीएल में डाला गया है और इस वजह से उनको हिरासत में तो नहीं लिया गया, लेकिन उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे वासिफ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत जारी है और हुकूमती वकील मखदूम अली खान केस पर दलाइल दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है। समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं। इकराम उल्ला जोया हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइए इस बारे में। देखें, नैब तरामी के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर इस वक्त समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं, जबकि इस वक्त हुकूमती वकील मखदूम अली खान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल दे रहे हैं। हुकूमती वकील मखदूम अली खान की जानिब से हमीदुर रहमान चौधरी की किताब का हवाला दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस हमारे लिए एजुकेशनल भी है और इस हवाले से मखदूम अली खान ने जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमीदुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान की सियासतदान थे जिन्होंने अपने ट्रायल की कहानी लिखी है। मखदूम अली खान ने सवाल पूछा कि इन्हें सिर्फ इस बात पर सजा दी गई थी कि पब्लिक ऑफिस से प्राइवेट कॉल क्यों की।
مغربی پاکستان سے تفتیشی افسران اور جج لے کر جاتے تھے جو ٹرائل کرتے تھے۔ مختوم علی خان نے یہ موقف اختیار کیا، جبکہ مختوم علی خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہی وہ حالات تھے جو آگے چل کر مشرقی اور مغربی پاکستان کو آمنے سامنے لائے۔ آئینی قانون سازی کو بااختیار بنانے کے لیے وہ آج ایسے قوانین کو پنپنے دیں گے، اور اس حوالے سے مختوم علی خان نے کہا کہ کسی جرم کی جزیات ہی تبدیل کر دیں، اس پر کیا کہیں گے کہ چیف جسٹس کا جو ہے وہ مخدوم علی خان سے استفسار کیا گیا، جس پر مخدوم علی خان کا آئین کے آرٹیکل 12 کا حوالہ دیا گیا اور کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ترامیم اور ان کے ماضی سے اطلاع غیر آئینی نہیں ہے۔ چیف جسٹس کا مخدوم علی خان سے مکالمہ ہوا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ بے نامی داروں کے کیس میں معاملہ آمدن سے زائد سازشوں کا ہوتا ہے۔ شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اکرام اللہ جویا۔